ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਮੁਲਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਸੀਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮੁਤਬਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੱਟਾ ਵਿੰਡਪੁਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਤਿਰੁਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਖੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬਈ ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਐਂ ਹੀ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਲਿਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਆਚਾर्य ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ कल्याण चंद जी। नौकरी वास्ते गए और नौकरी मिल गई है, और नौकरी मिली राय बुलार मोहम्मद भट्टी नवाब दे
ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਕਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਈਲੈਸ ਵਾਲੀ। ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਜਾਂ ਰਾਮੂ ਜੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭਰਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਤਿਰੁਪਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਵਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਲਿਚਰਾਂ ਪਿਚਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਸਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰੇ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕੀ। ਸਮੇਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ 5 ਭਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਰਾਜ 80% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ 20% ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਸੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਐ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਦਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੋ, ਲੀੜੇ ਦੇ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰੋ।
क्योंकि ज्ञान जिहड़ा है वो बिना कदर दे हासिल नहीं किया जा सकता। हुण जे अगर पैसे भी मैनू देने हैं तो मैनू इदां दो कि किते 100 का होना चाहिए, 50 का ही होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। और गुरु नानक की गल करदा, जे अगर 100 भी रख देगा तो इत्थे गुरु नानक नूं 100 टेकेगा, उसने तेरे घर विच 1000 की बरकत पा देनी है। तो गुरसिख प्यारे हो, आखिरकार जमाना बहुत गंदला है। हिंदू ते मुसलमान निक्कियां निक्कियां गल्लां नूं लेके झगड़ा करदे ने, खून खराबा हुंदा है, इंसानियत दा लहू डुलदा है। उस वेले रब ने किरपा कीती है इस जहान दे उत्ते, और किदां दी किरपा कीती है ध्यान नाल सुनियो। आखिर ओ वेला आ गया 1469 अप्रैल महीने दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस धरती दे उत्ते अवतार धारिया। और जब अवतार धारिया तो मैं आप जी नूं शेर सुनाया। की सुनाया? आया जिस वेले बाबे कालू दे कर लाल, लाया दाई दौलता चुक कालजे नाल। कमाल दी गल है, सब तो पहले जे अगर निगाहे मोहब्बत दे नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं देखिया है तो वो देखण वाली है दाई दौलता। और सब तो पहले नजर रहमत साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने किसी दे उत्ते कीती है ते वो भी है खुश नसीब दाई दौलता। नजरां दा कमाल है। पता की करते ने लोग, इन्हें मुसलमान ने छड्डिया सी, एक सनकी हो गया, पागल हो गया। पता नहीं मैं पागल हाँ या बाबा जसविंदर सिंह गोहा पागल है, आ मुसलमान नूं सद लैंदा है। इन्होंने टकसालियां ने मैनू सद्दिया सी, उत्थे भी शहीदी बाग जफरनामा साहब की संध्या चल रही सी। जनाबे आला टकसालियां ने मैनू सद्दिया, मैं गया, इन्होंने सद्दिया, मैं गया। भाईचारा इदां बहाल होया। अज इन्हां 10 सालां दे विच सारे वर्ल्ड दे सिख ते मुसलमान एक प्लेटफार्म ते आ गए। उस तो पहले पता नहीं किस किस तरह दीयां गल्लां करी जांदे सी ते इह काम 2 कमलियां ने मिल के कीता। ते गुरसिख प्यारिओ, गल ये नहीं हुंदी कि छोटे गुरुद्वारे दा पाठी है, बड़े गुरुद्वारे दा पाठी है, यह गल नहीं हुंदी। गल यह हुंदी है किसने गुरबाणी नाल प्यार किया है ते किने नहीं प्यार किया है। एक नूं पता नहीं मेतों की तकलीफ हुई, वो कहन लग्या उन्होंने फादरी नूं सादे, मुसलमान नूं सादे, वीडियो पाई उसने। एक कहन लग्या कि मुसलमान जिहड़ा कथा विचारा नहीं कर सकता। क्या कमाल दी गल है भाई। और मेरे मुंह ते ही कही जांदा सी। मैं क्या मैं तेरी गल मन्ना या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की गल मन्ना, या अगर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की गल तुसीं करदे हो ते साफ तौर ते आया है, कोई गावे को सुनै, कोई करे विचार, को उपदेशे कहो दड़े, तिसका होए आधार। 33 गोड़ी मोहल्ला 5वां, अंग पूरा 300। हम दसो कि मैं नहीं गा सकता। भाई साहब सत्ता जी 4 सिख ने मुसलमान, भाई साहब बलवंडा जी मुसलमान, भाई साहब मरदाना जी, 4 सिखां दे विचों 3 सिख मुसलमान ने, 4 भक्त विराजमान है। जड़ा पैगाम सारी दुनिया लई है, कुल कायनात लई है। जिस वेले मिथों पूछा गया सी कादरी जी तुसी दसो सारी दुनिया दे विच अमन बहाल किवें हो सकती है, भाईचारा किवें बहाल हो सकता है, मैं उन्होंने कहा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिहड़ा ज्ञान है, इन्हां दा जिहड़ा चानन है, इन्हां दा जिहड़ा प्रकाश है, इन्हां दा जिहड़ा संदेश है, इन्हां दा जिहड़ा उपदेश है, वो जियो जी कोले पहुंचा दो। होना यह है कि एक वेला वो आना है जिस वेले सारी दुनिया ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की सतर छाया हेठ आ जाना। भाई बाजी ले गई, बाजी ले गई, वाह भाई वाह, बाजी ले गई बीबी। हाँ बंदे तो सोच रहे ने कच्ची बाणी पड़ गया, पक्की बाणी पड़ गया। तो कच्ची पक्की करोगे ना तो मैं अरबी फारसी संस्कृत मेरी मूल रूप में पढ़ी हुई है, उसी बदों बद गुरमुखी बाँची होगी, वो मैं अपने इस मादर वतन दे विच समझदा हाँ। फिर मैं कच्ची बाणी सारी कर दूंगा, पक्की बाणी आके जरा 2 लफ्ज़ां की अदायगी करके विखाओ, फिर मैं तुहानूं पुछांगा तुसी केड़ी पक्की बाणी पढ़दे हो। अर्ज आयन इत्थों निकलदा है, इत्थों अर्ज, अगर इसनूं अर्ज कहोगे तो जमीन हो जाना है, अर्ज कहोगे तां बेनती होना है। जनाब आला, या अगर कुन नूं कुन कह दिया तो कुन दा अर्थ है हो जा, बाणी ठीक नहीं रहनी, अर्थ ठीक नहीं रहना। तो गुरसिख प्यारे मैं उसनूं आख्या, मैं कहे नवा बवंडर की है, नवा बवंडर क्यों है? वो इस करके है कि कई प्रचारकां ने प्रचार नूं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੌਮ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਧੰਨ 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 ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 5 ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਦਰਤੀਓਂ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ, ਲੋਕੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁੱਲਕ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਠੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरख, पतला दुबला शरीर है लेकिन अपने असली मां प्यो दी औलाद है। पवित्र कुख दा जन्मिया होया इस तरह दा जोधा जिसने के सिक्खी दी दस्तार नूं बुलंद कीता। बलवंत सिंह राजवाना इस तरह दा जोधा जिसने सिक्खी दी दस्तार नूं बुलंद कीता। जगतार सिंह हवारा ऐदां दा जोधा जिसने कि सिक्खी दी दस्तार नूं बुलंद कीता। सतवंत सिंह बेअंत सिंह ऐदां दा जोधा जिसने सिक्खी दी दस्तार नूं बुलंद कीता। उस तो बाद साडी कौम च हुण कोई भी जोधा नजर नहीं आउंदा। उस दा कारण बुनियादी यह है कि साडे बच्चे चंगे नहीं रहे, साडियां बच्चियां चंगियां नहीं रही, साडियां कुखां ठीक नहीं रहियां, साडे बच्चों दा जत और सत ठीक नहीं रहा। साडे बच्चे किरदार तो परां हो गए ने, साडियां बच्चियां अपने किरदार तो परां हो गई ने। यह गल तुहानू बहुत माड़ी लगती होगी जे अगर एक ठोस गल दस के जावां ते सब तो वध जिहड़े एमीग्रेशन परचे दर्ज होए ते साडे पंजाब दियां धीआं ते भैणां दे उत्ते दर्ज होए। इत्थे तक सके भैण भरा मियां बीवी दा नकली सर्टिफिकेट बना के बाहरले मुल्क जा रहे सन। कौम तैनू सोचना होगा तू की कौम है, जोधियां दी कौम है, जुजारुआं दी कौम है, खालसियां दी कौम है। गुरसिख प्यारिओ, तुहानू पता है कि मैं हुण मुसलमान तो मैनू तलाक दे चुके हैं ते हर एक थां मैनू सिखां दे विच जाना पैंदा है, पर मैं बहुत फकर दे नाल जाना। एक मुसलमान आलम साहब ने मैनू रोकिया, कहंदे कादरी जी। मैं कहा जी, कहंदे अपना इतिहास कोई घट नहीं। मैं कहा बिल्कुल घट नहीं। कहंदे करबला दा मैदान होया, एक पासे 73 मुसलमान ईमान वाले और 22,000 मुसलमान जिहड़े जुल्म जबर दे उत्ते सी मुकाबला होया, पर वो जिहड़े 73 ने उन्होंने गोडे नहीं टेके मुकाबला किया। मैं क्या मैं उन्होंने 100 सलामा करदा हाँ जिहड़े ईमान ते खलोते सन। उस तो बाद क्या एक मुकाबला होया जंगे बदर दा, एक पासे 313 मुसलमान और दूजे पासे 10,000 जालम मुकाबला होया। 313 की जित हो गई। मैं क्या उन्होंने भी मैं 100 सलामा करता हाँ, पर एक इतिहास
मेरे कोल भी है। कहते तुसी दसो। मैं कहा इतिहास यह है कि एक पासे 10 लाख का लश्कर है और दूजे पासे 40 सिर्फ 40 सिंह ने मुकाबला होया, जंग ना हारे, गोडे ना टेके, बल्कि मैदान विच नितरे ते उतरे। हाँ, जयकारा गजदा होना चाहिए है, बजदा होना चाहिए है, पता लगना चाहिए है कि गुरु दे खाल से अज भी गुरु साहिबाना नूं इसी तरह प्यार करते हैं। वही जोश है, वही खरोश है, वही ईमान है। मैं तुहानूं नुकता यह देना चाहना हाँ कि दुनिया की कितनी पवित्र होनी है माता त्रिलोकता, कितनी पवित्र कुख होनी है, और दुनिया का कितना पवित्र होना है कल्याण चंद, उन्हां दा पिता जिन्हें अपनी सारी जिंदगी दे विच पटवारी रहा है, अमीन रहा है, एक बुरकी भी हराम दी नहीं खादी है। अज का हाल की है कह जावा, चली नहीं जानी, मिर्चा लड़ जाणगियां। अज साडा हाल की है, ऐ लभदे फिरदे आ कितों हराम मिले, कितों हराम मिले, कितों ठगी बजे, कितों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आमद हो गई। ढाई दौलतां ने प्यार नाल कालजे नाल लाया। गुरु नानक देव जी ने ऐदा करके अखां खोलियां, नजरे रहमत फरमा दी। इधरले पासे ढाई दौलतां कर दिया नजरे मोहब्बत के ना सोना है, दूजे पासे गुरु नानक पैदा होंदे ही सार करते ने नजरे रहमत। दाई दौलता कौन है? मुसलमान है, साडी है। गुरु नानक नूं सब तो पहले गोदी चक्कण वाला कौन है? मुसलमान। मुसलमान है, मुसलमान। हाँ, चंगी तरह सुन लो, मुसलमान है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ रिवायत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ सीधियां सुनाइया ਜਾਂਦੀਆਂ ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चैलेंज ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ रिवायत सुनावांगा और बिल्कुल सच्ची होगी, कोटी हुई, पकाई हुई, खोजी हुई। गुरसिख प्यारियो, साहिब श्री गुरु नानक देव जी की आमद हुई है बाद चो। पहला राय बुलार मोहम्मद पट्टी जिहड़ा जागीरदार नवाब है, उसने रात को एक ख्वाब वेख्या, विशारत हुई। विशारत तुहाडे समझ नहीं आउणी क्योंकि असी बोलते हैं शाहमुखी पंजाबी, तुसी समझते हो गुरमुखी पंजाबी। विशारत का मतलब है सुपने दे विच संकेत होना, इशारा होना। इलाही इशारा होया है, इलाही इशारा की होया है, और सुपना वेख रहा है, ख्वाब वेख रहा है। देखिया यह है कि बाबा कालू मेहता जी दे घरों एक नूर दा दरिया वगदा है, जिहड़ा नूर दा दरिया कुल दुनिया नूं रोशन करदा है, और जिहड़ा राय बुलार है उस दरिया दे विच रुलिया जा रहा है। किहड़े दरिया दे विच? नूर दा दरिया। उन्हें अपनी बेगम को पूछा, हाँ दसी जरा मेरे सुपने का मकसद की है, ख्वाब का मकसद की है। वो कहती है नवाब साहब मैनू पता है, भैन तृप्ता दे घर किसी बच्चे ने जन्म लेना है, और जिहड़ा बच्चा आ रहा है वो बच्चा साधारण नहीं होना, असाधारण होना है। वो नूर लेके आ रहा है, उसने सारी दुनिया दे विचों हनेरे नू मिटा देना है और प्रकाश नू आम कर देना है सारी कायनात लई। और सब तो वध नेड़ता राय बुलार मोहम्मद साहब तुहाडे नाल होगी। कौन है जी वो? कौन है? मुसलमान। कौन है? नवाब। उसने कितना प्यार किया साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं 750 मुरब्बा बीघा जमीन साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं ओदे औलाद हुंदी है। औलाद हुंदे सुंदे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे नाम करा रहा है 18,000 एकड़ जमीन। किन्नी किन्नी? 18,000 एकड़। कौन दे रहा है? मुसलमान। किदे बच्चे नूं? हिंदू दे घरे जिहड़ा पैदा होया है उस बच्चे नूं। तुसीं यार सानू इन्ना भी ना बखाणिया करो, असीं तां तुहाडे आप दे हां। तुहाडा तां साडा एक रिश्ता है, आसा इश्क एकता खान पान पहरान तुहाडा ते साडा एक है। ते गां चलांगा ते मैं दसांगा कि मैं एक है। ते गुरसिख प्यारे उस तो बाद वो की करता है? दूजा कारनामा करता है। दूजा कारनामा की है? ओदे प्यो दादा दे नाम ते है राय पोहे दी तलवंडी, उसने ओदा नाम चेंज करके रख दिता है ननकाना साहिब। लियाओ जरा एक इतिहास। 18,000 एकड़ जिहदे विच 20 पिंड वसे हुए ने, ननकाना साहब वसिया होया है। वो सारी जगह मुसलमान नवाब ने दी है। तुहाडे नवाब का भी किसी का नाम दस दो की दिता है। अज आपां उस स्थान ते आए हुए हैं जिथे साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी दा पवित्र नालैन पाक। नालैन पाक का अर्थ है उन्हां दा पवित्र जूता शरीफ। तो जरूरी नहीं कि मैं तुहाडे हिसाब नाल सत्कार करा, मैं तो आपदे हिसाब नाल भी सत्कार करांगा ना।
मैं किहड़ा तुहानूं खुश करन लई आया हाँ, तो मैं खुश की करा? मेरे सामने आए 200 रुपए, हुण जे अगर कंजरी आके ठुमके मार दी तो जट्टे कमड़े हो जाने सी, ऐ करके नोट उड़ाउंदे। फिर होना की सी? करजाई हो जाते। और जब करजाई हो जाते फिर वो की करते? बाणियां नूं गालां कढदे और उस तो बाद की करते? केक रस्सी लेके पा ले लेंदे। किहड़ा रब ने तुहाडी मुक्ति देनी है? भूत बने हुए घूमदे हो क्योंकि मुक्ति नहीं हुई, नीतां माड़ियां, सोचां माड़ियां। मैनूं पता है तुसीं अगली वारी नहीं सदोगे ना सही, मैं तुहाडा अधीन हां, मैनूं पता है कि तुसीं इत्थे सदोगे, पर गुरु नानक दे उपदेश दे नाल छेड़खानी नहीं होगी। जिहड़ा सच्चा है वो सच आख्या जाऊगा। ते गुरसिख प्यारिओ, राय बुलार मोहम्मद पट्टी तो अपनी बात चल रही सी इत्थे, जे अगर एक पासे सारी दुनिया दे पहाड़ पारस बन जान, जिन्ने दरिया ने सारे दरिया हीरे जवाहरात उगलना शुरू करन और सारी दुनिया सोने दी हो जावे, एक पासे गुरु अमरदास जी महाराज जी दी नाला ने पाक वो जूता शरीफ होवे और मैनू कहन गुरु अमरदास जी, है कादरी तेरे वास्ते एक पासे सारा तन है और एक पासे मेरी नालैन है, दस तेनू की चाहिदा है? ते गुरसिख प्यारे हो, मैं उस जूते नू लेके अपने सिर ते रख लेना है कि मैनू ये चाहिदा है। गुरु अमरदास जी महाराज जी की गल आ गई तो एक गल होर दस के जाना चाहिए। अकबर बादशाह ने 12 पिंडां दी जागीर साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी नूं बतौरे नजराना पेश की। नजराना अर्थात भेटा। और उस तो बाद ओदे मन च आया कि नहीं मैं घट नजराना किया है ते 84 पिंडां दी जागीर फिर दोबारा देने की कोशिश की। गुरु अमरदास जी कहंदे नहीं, कहंदे ठीक है तुसी परवाह ना करो, मैं बीबी पानी नूं आप दी धर्म दी भैन मन के वो सारी जायदाद नाम करदा हाँ। और अज वो जिहड़ी जायदाद है बाबा बुड्ढा जी दे बीड़ दे नाम तो मशहूर है। ते साडा कोई हक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। किवें नहीं है, किवें नहीं है दसो? मैं दसदा फिर तुहानूं, चलो अगे चलो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अवतार धारिया, प्रकाश पर्व हो गया है। संकेत सब तो पहला होया है राय बुलार मोहम्मद पट्टी नूं। राय बुलार मोहम्मद पट्टी ने बहुत प्यार किया है। जिमें जब किसी विद्वान नूं सद्दिया जाता है या कोई रब दा प्यारा हुंदा है तो कोई ना कोई बंदा इदां दा हुंदा है जिस नूं रब वल्लों इशारा हुंदा है ते वो प्रगट करदा है। ते प्रगट करन वाला कौन है? राय बुलार मोहम्मद पट्टी जागीरदार है, नवाब है। जेड़ा ये कहता होवे ना कि इतिहास गलत बयान करके जा रहा, मेरा नंबर नोट कर लो 94 171 23 883 9417123883। और दूजी गल यह है कि वो जिहड़ा होवे वो RSS दा चमचा ना होवे, क्योंकि एक नकली फैक्ट्री सिख बनाने वाली हुण भी वीडियो मेरे को मौजूद है, वो सामने आ चुकी है। इदां दा ना होवे, होना खरा सिख चाहिए है। या अगर उसने मैनू फोन मिला के बेतुकी हाँ की तो तुसीं ऐ ना सोच लियो कि मैनू सिर्फ कथा आउंदी है, मैनू कुछ होर भी आउंदा है हाँ अगे गुरु साहब जी की किरपा नाल। ते गुरसिख प्यारिओ, उस तो बाद दूजी रस्म हुई। दूजी रस्म की है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का नामकरण होया। नामकरण करने वाला कौन है? नामकरण वाला हरपाल दास पंडित, क्योंकि हिंदुओं का परिवार है, सनातनियों का परिवार है, वो सारी रीत रस्म रिवाज उन्होंने पंडितों के राही होनी है। वो पंडित जिहड़ा है वो 9 दिन पोथी लेके बैठा रहा है। 9 दिन बाद नामकरण किया है। नामकरण करके कहता है कि ना है नानक। बाबा कल्याण चंद बाबा कालू मेहता जी खफा हो गए, नाराज हो गए। कहते ये दस ये किहड़े कोश का है? अरबी का है, फारसी का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, पंजाबी का है। यानी गुरु नानक देव जी के नाम का अर्थ किसी कोश दे विच नहीं पाया जाता। गल यह है कि जे अगर गुरु नानक नूं शॉर्टकट कहना है तो यह कह दो गुरु नानक रब है। कौन है? रब है। रब असी देखे नहीं, गुरु नानक नूं असी देखिया। और गुरु नानक ने जिहदे ते किरपा की उसनूं रब दिखाया है। रब किहनूं दिखाया है? बाबे मर्दाने नूं। प्रचारकां दी अन्नियां अखां। मन कान फी हाज़िही आमा वहुवा फिल आखिरती आमा अहदा सबीला। कुरान दे विच कहा गया जिस अन्ने नूं दुनिया नजर नहीं आउंदी उसनूं आखिरत नजर किवें आ सकदी है। जिसनूं खुदाई नूर नजर नहीं आउंदा वो बंदियां नूं प्यार किवें कर सकदा है? गुरबाणी किवें? ते गुरसिख प्यारे हो, जद नाम रख दिता है तो कहंदे किहड़े कोश दा है भी ये नाम? ये तो दसो पंडित जी। कहंदे जी कोशकाश की करा? जे देख एक अखर खोजदा 4 अखर सामने आउंदे ने। कहंदे अच्छा जे जुगत करदा हाँ तो नानक बंदा
कई सारे कहते हैं बीबी नानकी ने नाम रखा क्यों? तेरी फैमिली जीरो फैमिली, गुरु नानक दी फैमिली रॉयल फैमिली। तेरा प्यो अनपढ़, गुरु नानक दा प्यो अरबी फारसी संस्कृत पंजाबी दा गया था। अज दा पटवारी ते उस दौर दा पटवारी जमीन आसमान दा फर्क। ते गुरसिख प्यारे हो, लेकिन कुर्बान जाओ रब दे प्यारे कोई ना कोई राह लभ लेंदे ने। नानक नाम दा अर्थ कीता है फारसी भाषा दे विच आलिमे नबील, फाजिले जलील, शास्त्रीय बेमिसाल भाई साहब भाई नंद लाल जिहड़े दशमेश पिता दे प्यारे सिख ने। उन्होंने फारसी भाषा दे विच 4 अखरां दा अर्थ कीता। अर्थ तुहाडीआं समातां दे हवाले। उर्दू च नानक लिखोगे तो नून अलिफ जबर ना, नून काफ जबर नक, नानक यानी नन्ना आला और फिर नन्ना और फिर कक्का आना है। ते उन्होंने लिखा 2 नून बना में ताकस ऐ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दे नाम विच जिहड़े 2 नून हन। अव्वल नून नईम, जिहड़ा पहला नून है वो इशारा करता है कि आप जी नईम हो। नईम दा अर्थ भी तुहाडे समझ नहीं आया होना है। नईम दा अर्थ है नामतां देन वाला, दातां देन वाला, खुशियां देन वाला, धन देन वाला, दौलत देन वाला, धीआं देन वाला, पुत्र देन वाला। यानी ऐ समझो कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं तुसीं मानदे हो कि नामतां दिंदे ने, दातां दिंदे ने। जे अगर मानदे हो ते आप दी हामी करो ते गवाही पेश करो जी। सतनाम 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अल्लाह नहीं बोलना, नहीं गुरबाणी पढ़ी है, कुछ और पढ़िया है, नफरत पढ़ी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे 6 बारी अल्लाह दा नाम आया है, 46 बारी, 3 बारी वाहिगुरु आया है, 1700 बारी राम आया है। इत्थे मैं तुहाडा एक भुलेखा दूर करदा। मेरे को एक हिंदू महाजना का काका आया, कहने लग्या कादरी साहब जी मैं अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। मैं कहा ठीक है करो। कहने दसो कि मैं करा। मैं उसनों कहा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने ले जाओ, इन्हां दे चरण स्पष्ट करा लो, बरकतां हो जानियां ने, रहमतां हो जानियां ने, काम मारो मार चलना है, चढ़दी कला होनी है। वो कहंदा जी कादरी साहब गल मेरे समझ नहीं आई। समझ तो किसी ते भी नहीं आउंदी, सिखां दे ते मुसलमानां दे समझ नहीं आई। लड़ लड़ के मर गए, एक पंजाब दे 2 टोटे करके बह गए और की लभ्या। आधे इधर रो रहे ने मेरे दादा उत्थे साडी इदां दा मकान सी, उधरले जिहड़े इधरों गए उधर रो रहे ने साडा पिंड फलाना सी, ऐदां सी ऐदां सी। और नफरत नहीं कीती हुंदी तो फिर इन्ने 2 टोटे किवें हुंदे। अज नफरत किन्नी है, भरावां दे विच नफरत, कमेटियां दे विच नफरत, ज्ञानियां दे विच नफरत, ध्यानियां दे विच नफरत, जठानी दुरानियां दे विच नफरत, भेत ते पुत दे विच नफरत। और नफरत ही नफरत है। गुरु नानक लेके आए मोहब्बत ते तुसीं लई बैठे हो नफरत। उस तो बाद कहने हो असीं गुरु नानक दे सिख ने। किहड़े पासों भाई? पासा भी तो दस जाओ सानू। ऐ देखो गुरु नानक दा उपदेश। मैं उसनूं कहा सुनियो जरा ध्यान नाल। मैं उसनूं आख्या मैं क्या सोहणिया गल सुन। वो कहंदा तुसीं मुसलमान, मैं हिंदू, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सिखां दे गुरु हन ते तुसीं या तो कुरान शरीफ नूं कहना सी या श्रीमद भागवत गीता दे पाठ नूं कहना सी ते तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं क्यों आख्या? मैं उसनूं कहा ऐ सोहणिया सुन ले, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं ऐदां समझ कि वो समंदर ने जिस समंदर दे विच लखां करोड़ों ही दरिया आए ते शांत हो गए। ऐदा अर्थ यह है भाव मैं ये कहना चाहना कि आज तो लैके जुगात ताईं जिन्ने पैगंबर आए, जिन्ने नबी आए, जिन्ने इलाही बाणी लैके आए, वो सारी दी सारी बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच समाई हुई है। यानी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का सत्कार कुरान शरीफ का सत्कार है, इन्हां दा सत्कार श्रीमद भागवत गीता का सत्कार है, इन्हां दा सत्कार इन्हां दा आप दा सत्कार है, इन्हां दा सत्कार सारे जहान दे जिन्ने भी इलाही बाणी लैके पैगंबर आए उन्हां दा सत्कार है। और इन्हां दा अनादर सारी दुनिया दा अनादर है, कुल कायनात दे सारे ग्रंथां दा अनादर है। और कहना मैं तो पढ़ा लिखा हाँ। एक काम ना करियो मेरी बच्चियों, भैनों, बीबियों कि मैं अखां बंद करके जब दीवान लावां तो तुसीं कहो कि हुण चुपचाप की सकदा। मेरे वर्गा बाबा अपनी कथा च आप ही मस्त हो जाया करदा सी, अखां बंद करके गुरु साहिबाना नूं ध्याना शुरू कर दिंदा सी। माइयां ने की कीता, रबाइयां ने की कीता, पंज पंज करके सारे ही चले गए, पूरा दीवान खाली हो गया।
एक माई बैठी रही, बाबा जी कहते सारा अज दे दीवान का फल तू लैके जा गई, कहते खुश होने की इन्नी लोड़ नहीं है, जिस चादर से बह के तुम कथा करते हो साढ़े घरों आई है। नौ रानी ने ऑर्डर मार के भेजा है कि जे अगर प्रसादे छकने हैं तो बुढ़ड़ी ये चादर लैके आई। कमाल की गल है, नीता नाल मुरादा, ओनू केड़ा फल लभ जाना है, नीता नाल मुरादा, सीधी जी गल है गुरसिख प्यारे। वो कहने लगे जी मैं एजुकेटेड, यह गल मेरे समझ नहीं आई। मैं उसनू आख्या, मैं कहते कुरान शरीफ की आयत है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, सब तो पहला अल्लाह, सब तो बाद चो अल्लाह, वल ज़ाहिर ज़ाहिर अल्लाह, वल बातिन लुकया होया अल्लाह। वो कहना ठीक है। मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को जाके पूछ ले, उन्होंने साफ तौर पर आख्या है आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी। बोलो जी, हाँ सच सच सदा रहने वाला है, इसमें मौत नहीं होती, मौत तो पाक है। फिर मैं क्या श्रीमद भागवत गीता दे विच आया है, सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम सत्यस्ते सत्य यूनिम निहतम च सत्य सत्यात सत्य मृत्य सत्य नैतरम सत्यात्मकम ताम शरणम पुरपन्ना। सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम, यानी जद कुछ नहीं सी परमेश्वर सी, हुण भी परमेश्वर है, और जद कुछ नहीं रहना फिर भी परमेश्वर ने रहना है। वो कहने लग्या गल तो ठीक है, गल ओदे समझ आ गई। वो कहने लग्या जनाबे आला फिर इदा करो कि आप जी, मैं क्या नसीहत की थी, मैं क्या ए देख लियो किते इदा का होना चाहिए अमृत पान वाला, ओही गुरु साहब जी नूं लैके आऊगा। तू तो बस दूर रह के दर्शन दीदारे करते रहने आ, क्योंकि गुरु की जिहड़ी किरपा है, जे अगर ननकाना साहब तो अरबां दी सरजमीन दे उत्ते हो सकती है, तो मैं क्या तू अगर पिछे पिछे चलेगा तो तेरे ते भी किरपा हो सकती है। तो गुरसिख प्यारे हो, उसने अखंड पाठ भी करवाया, और वो कहता है कि चढ़दी कला च हाँ मेरी फैक्ट्री दे विच नूरी राह चौगनी तरक्की हो रही है। और सिखां दा हाल बाबा जी, असीं अखंड पाठ भी करवाया सीगा, मुंडा बाहर तो चला गया, फिर हुण की है, अत्ते कारोबार सैट नहीं होया। रब नाल सौदेबाजी शर्म नहीं आउंदी, गुरु नाल सौदेबाजी शर्म नहीं आउंदी। थोड़ा जिहा सोच ले बई ती खुशीनामे दे विच क्यों नहीं कराया। उस टाइम अरदास वेले हथ बन के खड़ा हो जाना सी, हो जानी सी जी असीं तुहानूं बहुत प्यार करते हैं, प्यार दे नाल आप जी नूं लैके आए हैं, जिहड़ियां गलतियां गुस्ताखियां गलतियां फलतियां हो गईयां होण उन्हां नूं खिमा कर दो, ते साडे ते नज़रे रहमत कर दो, साडी तंगी दूर कर दो। जिहड़ा सौदेबाजी करता है वह मजदूर है, ते गुरु साहब जी दे मजदूर ना बनो बल्कि महबूब बनो। महबूब किद्दां बनोगे? जिवें भाई साहब भाई नंद लाल जी जुगती साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रसादा छक रहे ने, कुत्ता आके बह गया, बिल्कुल शॉर्टकट लेके चल रहा, साहिब ने उसनूं बुरकी पा दी, कुत्ते दे पीछे आके नंद लाल बह गए। गुरु साहब जी ने कहा नंद लाल कित्थे? जी दफा उत्थे बैठा। नंद लाल उत्थे क्यों बैठा है? कहना महाराज मैं सोचा कुत्ते नूं बुरकी तो पै गई है, मैं भी तुहाडे दर दा कुत्ता जे अगर मैनू भी बुरकी पै जावे। और सोचा कित्थे गईयां तुहाडीआं? समझो, सिक्खी नूं समझो, सिद्धांत नूं समझो, वसूल नूं समझो, प्यार नूं समझो, मुहब्बत नूं समझो। ऐदा ही होया। मैं क्या क्या आसा इश्तेकता खान पान पहरान साडा बिल्कुल एको ही जहजा। असी एक अल्लाह नूं मानते हैं, सिख एक अकाल नूं मानते हैं, असी 5 टाइमां दी नमाज पढ़ते हैं, सिख 5 बाणियां दा पाठ करते हैं, साडे विच 5 रकुन ने, सिखां विच 5 काकार ने, साडे विच 5 तने पाक ने, सिखां विच 5 प्यारे ने। साडी दाड़ी इन्हां दी दाड़ी, साडे केस इन्हां दे केस, साडी दस्तार इन्हां दी दस्तार। मैं तो सीधी गल कही थी, मौलवी साहब नूं पुट्ठी लगी। मौलवी साहब कहते जी कादरी साहब, मैं कहा जी साहब, कहते तुसी कहने हो कि सिखां दा ते मुसलमानां दा खास फर्क नहीं है। मैं कहा हाँ जी कहना। कहते फर्क तो इत्थे हो जाता है, असी कहने अल्लाह, और कहते ने वाहेगुरु। मैं क्या मौलवी साहब वाहेगुरु गुरु किस नूं कहंदे आ? कहते जी गुरु का मतलब है सिक्ख्या देने वाला, ज्ञान देने वाला, इल्म देने वाला, तहलीम देने वाला, तहजीब देने वाला। तो ज्ञान बहुत सारे विषय के ज्ञान है, ज्ञान का कोई अंत नहीं, बहुत सारे ज्ञान ने। तो मैं उन्होंने कहा कि ज्ञान देने वाला कौन है? कहते गुरु। मैं क्या हुण मैं कुरान की आयत पढ़दा, तुसी अर्थ करो। कहते जी कुरान की आयत पढ़ो। मैं कुरान की आयत पढ़ी, वअल्लम का मालम तकूनु तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा।
मैं क्या इसका अर्थ करो? कहते अर्थ यह है कि रब ने मनुख नूं सिक्ख्या दित्ती, ज्ञान दिता, इल्म दिता, तलीम दिती, और सब तो महान कृपा अल्लाह दी आही है। मैं उन्होंने कहा फिर सिक्ख्या देने वाला कौन? कहते गुरु। मैं क्या सिक्ख्या किने दिती? कहते अल्लाह ने। मैं क्या फिर अल्लाह नूं वाहिगुरू कहा जा सकता है? मौलवी साहब कहते हाँ जी बिल्कुल कहा जा सकता है। तो मैं क्या फिर कहो वाहिगुरू, अब बोल पाओ वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इस मंत्र का तुसीं जानदे हो किन्ना फल है? जिन्हें जप लिया सां ते ग्रासां दे उत्ते चला गया। आप साहिब फरमा रहे ने जिना सास गिरास ना विसरई, हरनामा मनमंत तन से सही नानका पूरन सोई। संत गोड़ी मोहल्ला चौथा अंग 313। ते गुरसिख प्यारे आप आ जाओ थोड़ा जा और गाहां नूं चलदे हां। जे अगर ईमानदार कोई मुसलमान होवे तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच उसनूं 46 वारी अल्लाह दे दीदार हुंदे ने। जे अगर सही माने च कोई सनातनी होवे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच 1700 वारी राम दी दीद हुंदी है। ते साडे जिहड़े सिख वीर ने वो वाहिगुरू दा जाप करते ने। मैं मौलवी साहब नूं कहा, मैं क्या सोने मौलवी साहब ऐ दसो कि तुहानूं वाहिगुरू तो एतराज है पर सिखा नूं अल्लाह तो कोई एतराज नहीं। जदों बाणी पढ़ते ने तो प्यार नाल बोलते ने अल्लाह पाकम पाक है, शक करूं जे दूसर होए तो मैं क्या कहो अल्लाह? तुसी चुप हो गए। मुल्ला खतरनाक है दोनों पासे दा, इधरला भी खतरनाक है उधरला भी खतरनाक है। इन्हां मौलवियां ने इन्हां ज्ञानियां ने लोकां दी एक अख फोड़ दिती है। कहने तुसी एक अख नाल ही देखो। पहले मैं सोचदा सी कि कल्ला मुसलमान ही कट्टरपंथी हो सकते हैं, पर जब मैं कहना अल्लाह देखें तेरे घरे अखंड पाठ हो तू अल्लाह ना कहेगा। जो हुक्मनामा आ जाए बिच अल्लाह हो तो देखें अल्लाह ना बोले। तो इस करके अल्लाह भी नाम है परमेश्वर का, खुदा दा, वाहिगुरू दा। ते बोलिए जरा एक बारी अल्लाह। हाँ कौम मेरी बहुत सियाणी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी भोली है, बड़ी चंगी है। ये वर्गी कोई कौम जहान दे उत्ते नहीं। गल यह है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब अल्लामा साहब विद्वान भावें सिखां दा होवे, मुसलमानां दा होवे, हिंदुआं दा होवे, लेकिन कुछ हस्तियां इदां दियां गुजरियां ने विद्वानां दे विचों। एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी, और एक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जिहड़ा उन्होंने नहीं पढ़ता नहीं जानता। तो यह मतलब है कि वह विदवता के नेड़े ही नहीं गया। उन्होंने गुरु नानक साहब की तारीफ लिखी, जज्बागे दरां लिखी है, कुलियात इकबाल लिखिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक साहब की तारीफ लिखी। कहते बुत कदा फिर बाद मदद के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। किन्नी तारीफ लिखी है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की। तो आप गल करते सी अर्थ, यानी भाई साहब भाई नंद लाल जी अर्थ फरमा रहे ने। अव्वल नून नईम जिहड़ा पहला नून है ओदा अर्थ है नामता देन वाले, खुशियां देन वाले, दातां देन वाले। इथों मैं इधर उधर लैके गया सी है। जब मेरे नाल रहना है ना तो मेरे नाल ही रहा करो। शब्द गुरु सुरत तुम चेला तुहाडे तो गलबात से समझ आउंदी है क्योंकि मेरी स्पीड तेज है। ये गल कही है ओ मैं तो जयकारा छड़ना सी, माइया की बद समझ आ रही है, उन्होंने पहले ही बार ही लै गई। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कौर का लफ्ज बख्शिश किया। कौर जिन्हें अमृतपान किया है वो खालसा, जिन्हें अमृतपान मर्द ने किया सिंह ते खालसा, जिन्हें अमृतपान बीबी ने किया कौर ते खालसा। ते सिंह नूं तो सारे जानते हैं, शेर, शेरां वर्गे बहादुर मर्द। लेकिन कौर का अर्थ की है? साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जंगलों की सैर फरमा रहे हैं। देखा एक निक्का जा परिंदा आया, एक शेर अपना मुंह खोली बैठा है, ताज़ा ताज़ा चर के आया है, निशान यानी खून दे नाल ओदा मुंह लिबड़िया पिया है। उन्हें मुंह खोलिया, एक परिंदा आया, अंदर गया, जाके उसने ऐदा एक बरीक जा पीस लैके मीट का बाहर आ गया, यानी मुंह बंद नहीं कर सकिया। गुरु साहब जी इन्ने खुश हुए, कहते इन्ना फुर्तीला, इन्ना परिंदा फुर्तीला। कहते नहीं, मेरिया नादी धियां कोरा होणगियां, एदे वर्गियां होणगियां। और जब मैदान आया
तो मैदान दे विच माई भागों ने साबित कर दिता कि यह गुरु दी कौर है। ते अज इत्थे भी साबित कर दिता कि एक कोरां ने इन्हां दे गल समझ आउंदी है। इन्हां ने योद्धियां नूं जुजारियां नूं जन्म दिता है, ऐ लिचरां पिचरां नहीं गियां। ते गुरसिख प्यारे हो, हुण गल चलदी सी, भाई साहब भाई नंद लाल जी कह रहे ने दोयम नून नसीर है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। जिहड़ा दूजा नून है वो इशारा करता है कि आप जी नसीर हो। नसीर दा अर्थ है खलकत दा मददगार। की अर्थ है? खलकत दा मददगार। ते गुरु नानक देव जी तुहाडे मददगार, मेरे मददगार, एदे मददगार, उन्हां दे मददगार और किद्दां दे मददगार। जे अगर तुसी सारी दुनिया नूं वेखो ते पता लगना है कि दुनिया दे नक्शे दे उत्ते 205 मुल्क आ गए ने। जे अगर वेखोगे तां तुहानूं पता लगना है कि करीब करीब 3000 धर्म विचर रहे हैं। जे अगर भाषावां की गल करिए तो 17,000 भाषावां खलकत बोलती है। कुर्बान जाओ सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की मदद दे उत्ते लिख रहे ने भाई साहब भाई नंद लाल जी, दोयम नून नसीर, यानी जिहड़ा दूजा नून है वो इशारा करता है तुसी नसीर हो, यानी खलकत दे मददगार। जे अगर तुसी साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं मददगार मानते हो तो आपकी हामी पर हो ते गवाही पेश करो जी। सतनाम सतनाम सतनाम। खलकत दे मददगार। कदे औखे वेले तू क्या हो गुरु नानक जी कृपा करो मैं फस गया हाँ, आ जाओ कृपा करो मेरी मदद करो? नहीं, ईमानदारी दे नाल किसी ने भी नहीं आख्या। माई की करेगी? मेरे वर्गे बाबे को ले जाएगी, देखी जरा बाबा ऐ 10 मण हरी दस्तार बड़े कमाल दिया आई ना देखो। माई समझ दिया बाबा तवीज गंडिया का पूरा भंडार खोल के बैठा होना है। बाबा जी दसो मेरे तो किसी ने कुछ करा तो नहीं दिता? बाबा भी जे अगर जेब च पैसे नहीं होंगे कहना हाँ तेरी जेठानी ने कराया, जेठानी ने कराया, हो जेठानी का लभ गया। हूँ घर वाले नूं कहेगी देख तेरी भरजाई, तू मर्द है इतना भी लोट नहीं आया तो कहेगी मैंने तो लगता है तेरी भरजाई नाल तेरे माड़े ताल्लुकात ने, माड़ा रिश्ता है। हाय हाय घरां दे विच नफरत, हो मेरी मामा भैणा बेगियां कराहे पै गईयां। कित्थे गुरु नानक दा संदेश है? कदे क्या है गुरु नानक देव जी महाराज मेरे ते कृपा करो मेरी मदद करो? क्या किसी ने? नहीं भी नहीं कहा। ईमानदारी नाल बोलियो, लै सिरे लाओ। किन्ने ने कहा भी अपने जीवन दे विच? किन्नी बारी कहा? 2 हाथ उठे, बाकी कहते बाकिया ने नहीं कहा, यानी 1-2% भी नहीं। क्या करो ना एक बारी क्या करो। मैं थानू दसा भाई मैनू सद लिया एक तां कथा करन लई, टॉफिक मैनू फसा दिता, कहंदे तुसी अमृतपान ते बोलना है। मैं क्या यार तो मल्लो मल्ली गल हो गई। 3-4 दीवान सी, लास्ट दीवान, हालांकि राजदारी की गल है खोलनी नहीं चाहिए है। मैं जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं पुकारना शुरू किया, मेरी पुकार सुन ली। मैनू ख्वाबी का नज़ारा होया कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए तो मैं उठ के बह गया, अपनी दस्तार सिर ते रखी, कदम बोसी फरमाई और उन्होंने मैनू सारा जिहड़ा मामला सी वो दृष्टांत विच दिखाया। मैं सुबह फिर पूरी वधिया कथा कर दी, यानी कृपा करते ने, कृपा करते ने, पुकार दे नहीं गए, कृपा करते ने। भाई साहब भाई नंद लाल जी गहां लिख रहे हैं, मैं सिक्खी तो तोड़ तो नहीं रहा, थानू तोड़दा ना तो मेरे डांगा मार के पहुंचा दो। जे अगर जोड़दा हाँ फिर ठीक है, जोड़दा हाँ तो फिर मैनू गाला ना कढ़ियो ना। मैं कहांगा तुहाडी चश्मेदानी खराब हो गई, यानी एक अख रह गई। वो गुरमीत राम रहीम सिंह जिहड़ा तुहाडा मुंडा सी वो भी तुहानू माड़ा लगता है, तो गुलाम हैदर कादरी मुसलमानों का मुंडा गुरु साहब जी की उस्तत करता है, वो भी माड़ा लगता है। चश्मेदानी खराब हो गई, समझो जरा। पर असीं ये कहने सानू गुरु साहब जी की कृपा चाहिए है। हुण साहिब श्री गुरु नानक देव जी के नाम का अर्थ हो रहा है, कर रहे हैं भाई साहब भाई नंद लाल जी। केड़ी भाषा विच कर रहे हैं? फारसी च। गां लिख रहे हैं सोयम अलिफ मयाने अहद, यानी जिहड़ा तीजा हरफ है अलिफ वो इशारा करता है ऐ साहिब श्री गुरु नानक देव जी तुसी अहद वर्गे। अहद रब नूं आख्या जांदा है। हुण तुसी कहोगे उन्हां दे कहण दा भाव की है, तो मैं अपने स्टेज के उत्ते शिक्षोधक ने हंस साहब इन्हां नूं जरूर मैं इस वल मुतवज्जे करांगा। किवें करके सुनो जरा इस गल नूं। तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी फुल्लां वर्गे,
मैं कहांगा बेअदबी, तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी दरिया वांग। मैं कहांगा बेअदबी, तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी समंदर वांग। मैं कहांगा बेअदबी, तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी चंद वर्गे। मैं कहांगा बेअदबी, तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी सूरज वर्गे। मैं कहांगा बेअदबी, तुसी कहोगे असी चंगियां चंगियां चीज़ां दा नाम लिता है, तुसी कहने हो बेअदबी। तो मैं तुहानू दसांगा, देख सोहणिया, गल सिर्फ ये है कि एक फुल वर्गा दूजा फुल है, एक दरिया वांग दूजा दरिया है। जे अगर आपां कहने आ कि चन्न कल्ला है, आपां कहने आ सूरज कल्ला है, ये साडा भुलेखा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बाणी है 22वीं पौड़ी, जिवें साडे स्टेज के उत्ते पहले पढ़ी सी भाई साहब ने, साहिब फरमा रहे ने पाताला पाताल, लख आगाशा आगाश। या अगर लख आसमान ने ते लख चन्न हो गए, लख सूरज हो गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अज तो 550 वरे पहले साइंस नूं नंगा कर दिता। साइंस ने अज खोज की ते एक गल साबित हो गई कि जिद्दां दा यह सूरज है, ऐदां दे बहुत सारे ब्रह्मांड दे विच गोले ने। जिद्दां दा यह चन्न है, ऐदां दे बहुत सारे चन्न ने। मैं पुछदा हाँ, गुरु नानक दी दृष्टि दे कुर्बान बैठा है धरती ते और खबरगिरी दिंदा है आसमाना दी दुनिया दे विच। जे अगर साइंस नजर आउंदी है तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पैरां दी दासी नजर आउंदी। ते सोहणियों गल साफ हो गई, ना चन्न कल्ला है, ना सूरज कल्ला है, ना फुल कल्ला है, ना दरिया कल्ला है, ना समंदर कल्ला है। जे अगर साहिब श्री गुरु नानक देव जी की मिसाल देनी है तो इदा देनी चाहिए है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी रब वर्गे, रब भी दूजा तीजा कोई नहीं, तो गुरु नानक भी दूजा तीजा कोई नहीं। देखो किसी भी बंदे ने एक बारी जयकारा नहीं छड्डे, ऐ गल बेनतहा माड़ी है। अगली बारी किराए ते लेके आया करा। मेरे वर्गे बाबा जी 5 बंदियां नूं नाल लेके जांदे, कहंदे भाई 2 काम करने ने। कहंदे जी केड़ा केड़ा महाराज? कि एक तो सब तो पहले मत्था टेकना शुरू कर देना है, क्योंकि साडे पंजाबियां दी जिहड़ी आदत है वो ये है कि जिहड़ा एक पासे एक तुरदा है ते दूजा भी तुर जांदा है। कहंदे दूजा की है? कहंदे जयकारे छड्डने आ। पैसे तय हो गए, बाबा जी तेरे दीवान चों इन्ने इन्ने पैसे असीं भी लैणे आ। हुण बाबा जी काली दे विच दीवान जा रहे सी, उन्हां दीयां करवालियां नूं पैसे दे के चले गए, बंदे ते नाल चले गए, जयकारा नहीं छड्डदे। बाबे भी बड़े कमाल दे हुंदे ने। बाबियां ने कहा लै भाई सुनो, गलतफहमियां बहुतियां लड़ाइयां पैदा करा दिंदी है। जिवें इन्हां भरावां दा मैं करजाई सी, इन्हां दीयां करवालियां नूं मैं पैसे फड़ा के आया हाँ ते हुण भी नाराज ने। उन्होंने कहा बाबा जी पहले इशारा क्यों नहीं कीता सी? बोले सोनिहाल ऐदा ना करो भाई, मैं किराए दे लेके नहीं आने, मेरे नाल तो एक कोई सिंह है और वो भी 1.25 लाख है, और मैनू लोड़ भी एक दी है, क्योंकि एक सिंह 1.25 लाख बराबर हुंदा है। तो जयकारा तुसी भी छड़ दिया करो। जिस गुरु ने साजिया है, जिन्हें नवाजिया है, वह भी तुहाडी आवाज़ सुनूगा। जिस वेले अपना पुत्र बोलता है तो आपां ओहदी आवाज़ सुन के खुश होने हाँ। जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी का सिख, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का खालसा जब जयकारा छड़दा है तो गुरु साहब जी गदगद हो जाते हैं। जिहड़ा खालसा साजिया सी, नवाजिया सी, अज भी वो जंगी सरूर और जंगी जोश दे विच बरकरार है। भाई की कह रहे हैं पता तुहानू? बाबा सानू हवा ना दे, तू हवा दे के तू मैनू लाख रुपए देगा, मैं जयकारे नू ही कहना। कई सारे पता की सोचते होंगे, बाबा जी दीवान च हसा रहे ने, क्योंकि असी तो हुण तक दीवान ऐदा करके सुनते आए हाँ। मैं पुछदा प्रकाश पुरब मनाने हो तो प्रकाश पर्व खुशियां का मौका है कि नहीं है? खुशी विच कोई बंदा रोंदा है, गुरु साहब जी की निੱघी गोद है कि नहीं है? जिहड़ा बंदा दीवान च भी नहीं मुस्कुराया वो जहान च नहीं मुस्कुरा सकता, क्योंकि जे अगर रहमत दा कोई मकाम है तो वो ये है, और जहमत दा दुखां दा जे अगर कोई पिटारा है तो वो जहान है, वो दुनिया है। एक शेर तुहाडियां समातां दे हवाले उर्दू दा, या तो दीवाना हंसे या इस साहिब जिसे तौफीक दें, वरना इस दुख भरी दुनिया में आखिर मुस्कुराता कौन है? आपां प्रकाश पर्व मनाउण लई ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कह रहे हैं, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुसी रब वर्गे हण के नहीं हन, दाता दैन वाले हण के नहीं हन, मददगार हण के नहीं हन। फिर अगे लिख रहे हैं,
चहारुम काफ आखिर रा कबीर। क्या जड़ा चौथा हुर्फ है, लफ्ज है काफ, वो इशारा करता है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कबीर तुसी बहुत वड्डे, बहुत महान। किन्ने वड्डे किन्ने महान? शाहाने वक्त उन्हां दे दर्द गुलाम, काजी ये वक्त उन्हां दे दर्द गुलाम, हाजी ये वक्त उन्हां दे दर्द गुलाम। तुसी ऐ ना सोचियो कि प्रकाश पुरब तुसी मनाउने हो, मुसलमान भी मनाउंदे ने। तुसी ऐ ना सोचियो कि सिर्फ अखंड पाठ तुसी कराउने हो, मैं भी कराउणा अपने घर च। जाके पुछ लो भाई साहब अमरजीत सिंह कनकवाल वाले टकसाल दे, उन्हां दे बच्चों ने जाके अखंड पाठ किया कि नहीं किया। फर्क यह है कि तुहानूं समझाउण लई कहना पैंदा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, ते असी प्यार विच कहने आ हजरत हाजी बैतुल्ला फना फिल्ला वकाबिल्ला हजरत रब्बे मजीद पीर अल हिंद नानक शाह रहमतुल्ला वली अल्लाह। तुहाडे गल ही समझ नहीं आई। कहने समझ नहीं क्यों है? और नफरत ने बंदे नूं कमला कर दिंदी है। नफरत दो काम करदी है, दिल नूं काला करदी है, अखां दे उत्ते पट्टा चाड़दी है और दिमाग नूं बेकार कर दिंदी है। बंदे नूं सच्चा रस्ता नजर नहीं आउंदा। जे अगर सच्चा रस्ता तुसी पाउणा है, गुरु नानक दे उपदेश दे उत्ते चलना है, तो प्यार करना सीखना होगा। क्योंकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का आप पवित्र फरमान है, रब सबके मीत हम आत्म की ना हम सबना के साजन। ते गुरसिख प्यारे हो, साहिब श्री गुरु नानक देव जी का नामकरण हो गया, बच्चा जिवें परवरिश पाउंदा है, परवरिश चल रही है, चलते पालन पोषण बहुत प्यार नाल हो रहा है। हुण पटवारी साहब जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी की उम्र हो गई है, यानी 75 विच 69 तो 75 6 वरे की उम्र, 6 वरे की उम्र दे विच कहा कि हुण बच्चे नूं हिसाब किताब सीखण लई, जोग्राफिया सीखण लई, जोड़ कटा सीखण लई किसी कोले भेजना चाहिए है, कोई उस्ताद होना चाहिए है। तो गुरसिख प्यारे हो, अंदाजा लाओ उस वेले कितनी रॉयल फैमिली होनी है, कितनी ज्ञानियां दी फैमिली होनी है, कितने आलमा दी फैमिली होनी है, किन्ने शास्त्रियां दी फैमिली होनी है कि 6 वरे की उम्र दे विच उस्ताद की तलाश हो रही है। तो साढ़े बच्चों का हाल की है? 12 वरे का होंगे, उस तो बाद स्कूल भेजते हैं, और 6 वरे का जब गाल कटता है ना, मैं कहती देखी मखना, देखी तेरे पुत ने गाला कट दी है, और डब के मर जब जवान होकर डांग फेरेगा, फिर मेरे वर्गे बाबे कोले आ गई, बाबा जी कोई शक्कर ही कर दो, बाबा जी कोई तवीत ही दे दो। और दुकाना तो तुसी चलाइया हुई ने, बुनियादी तौर पर तुसी तलीम नहीं देंगे, बच्चों को समझाते नहीं, अदब नहीं सिखाते। एक पासे वो वेख लो, निक्के निक्के 2 बच्चे, एक दी उम्र 7 वरे दी है, एक दी उम्र 9 वरे दी है। उन्होंने शिक्षक कौन है, उन्होंने उस्ताद कौन है? उन्होंने दादी है मोहतरम, उन्होंने प्यारी दादी कौन? माता गुजरी जी, यानी सूबे की कचहरी विच जाके ना डरे ना विके, बल्कि सजा नूं कबूल किया। उन्होंने चेहरे के उत्ते पह नहीं सी, डर नहीं सी। तेरा कादा लाल है? जे अगर वो लाल नहीं निहा च चुनवाए गए होंगे तो अज तेरे लाल नूं तो इदा ना लेके बैठी होंगी। मुगलों ने पता नहीं करना की सी, बड़े हरामी सी सिरे दे मुगल, पक्के जालम सी सिरे दे, जिन्ना कह दो ना इंसानियत तो उन्होंने विच ही नहीं सी। ते गुरसिख प्यारे उस वेले की कहती है, चलो जी चलो बच्चे नूं सिक्ख्या दो, बच्चे नूं पढ़ाओ जी, सही करके बच्चों की परवरिश करिया करो। जब गाल कटदा चपेड़ मारिया करो, आए तेरा डेडी है, ऐदा ना बोल, डेडी जी कह, आए तेरी दादी जी हैं, इन्हों दादी जी कह, आए तेरी भूआ है, इन्हों भूआ जी कह। गाल कटदी है, जहालत ला इल्मी कम इल्मी। है देखो कितनी रॉयल फैमिली है। गुरु नूं लैके चले गए, किनूं लैके गए? गुरु नूं शागिर्द बनाने लई चले गए। पंडित जी ने अपनी भाषा सिखाई, जब पंडित जी की भाषा सुनी तो हुण ये आया है पैगंबर बन के, ये आया है नूर लेके, ये आया है ज्ञान लेके, ये आया है बाणी लेके। एक तुहाडे एक बड़ा सोहना जिहा मुंडा है, वो बहुत वधिया कीर्तन करता, बहुत सोहना जिहा, की नाम है उसका? पता नहीं, ढडरियां, पता नहीं ढडरियां, कुछ इस तरह करके उन्होंने नाम है। मैं वो एक गल सुनी तो मैं हैरान रह गया। वो कहता है, वो पानी लेके आने हो, बाणी भी ले आया करो। ते बाणी तो गुरु नानक लेके आए ने, 10 पातशाहान लेके आए ने, रब्बी पुरुष लेके आए ने। जे अगर खेत दा जट अमृतसर जाके बाणी ले आया तो मैं तो भाई जाके खरीद लेनी है, भावें मकान बेचना पै जाए, भी सारी बाणी मैनू ही दे दो। मैं हैरान रह गया, केड़ी रूहानियत है, किस हिसाब नाल लोग सोचते हैं। हैं तो गुरसिख प्यारे हो, मैं उन्होंने उत्ते कमेंट नहीं कर रहा,
क्योंकि नज़र दे नाल नज़रिया हुंदा है। हर बंदे दी सोच बराबर नहीं हुंदी। वो बहुत सोहने लगते हैं, बहुत चंगे लगते हैं, प्रचार भी करते हैं, उन्होंने गुरुद्वारा भी बहुत सोहना बनाया है, मैं उन्होंने सत्कार करता हाँ। पर यह गल थोड़ी जी मेरे समझ नहीं आई, इस करके तुहाडे नाल सांझी कीती है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि जिवें साडे ते लोकां ने मेरी ते बाबा सुखदेव सिंह बुच्चो मंडी वाले महापुरखों की तस्वीर बनाई, पोस्ट पाई, कहते देखो ए कौम दा माल खा के किवें साध मोटे हो गए। मैं क्या वो गुरु नानक दा सिख है भाई, फलदा ते फुलदा रहिंदा है। यह किहड़ा किसी कंजूस गुरु दा सिख है। तो गुरु ने हुण सिक्ख्या देनी शुरू की, तालीम देनी शुरू की। पंडित जी नूं कह रहे हैं जाल मोह कस मस कर, ए जिहड़ी मोह माया सिखाने लई पंडित जी तुसीं मैनूं प्रेरित करन लगे हो, इस नूं जाल दो, घस दो, इहदी स्याही बना लो, मस कर, मत कागज कर सार, जिहड़ी मत है ओहदा कागज बना लो, फिर सार पुछो। उस तो बाद फरमा रहे ने भाओ कलम कर, जिहड़ी भावना है उसका कलम बना लो, चित्त लिखारी जिहड़ा दिल है उसनूं लिखारी बना लो, गुर पुछ लिख विचार, उस गुरु नूं पुछ के विचार लिखने शुरू कर दो। नाम लिख सालाह लिख, लिख अंत ना पारा बार, यानी सब तो पहले परमेश्वर का नाम लिखो, उस तो बाद उसकी सिफत सालाह लिखो, और लिखन तो बाद ये ना सोच लो कि सारी तकमील हो गई है, मुकम्मल हो गई है, संपूर्ण हो गई है, पूर्ण हो गई है। असल गल तो यह है कि कुरान दे विच आया है कि जे अगर सारे दे सारे दरियावां दी स्याही बना दी जाए, जे अगर सारी दुनिया दे दरख्त तराश के कलम बनाए जान, जिन्ने ताल ते पाताल हन उन्हां दे उत्ते अकाल पुरख दी उस्तुत लिखी जावे, सारा मटीरियल मुक सकदा है पर ओदी उस्तुत घट नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। गुरु साहब जी लिख रहे ने बाबा ऐहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। श्री राग मोहल्ला पहला अंग 16। जिस वेले ये गल पंडित जी ने सुनी, हैरान रह गए, सन रह गए, दंग रह गए, मुंह वेखना शुरू किया कि आयु है सिर्फ 6 वरे दी, लेकिन ए जिहड़ी बाणी सुनाई है, ए जिहड़ी हिदायत की है, इस तो लगता है कि यह शागिर्द नहीं है, इस तो लगता है कि यह चेला नहीं है, इस तो लगता है कि स्टूडेंट नहीं है, बल्कि संकेत ये मिलता है कि यह दुनिया का गुरु है, कायनात का गुरु है। गुरु नानक वो गुरु हन जिहड़े किसी दे चेले नहीं, किसी दे शागिर्द नहीं। जे अगर अज गुरु बनना होवे तो पहले चेला बनना पैंदा है, जे अगर संत बनना होवे तो कछैरा ते गलवा चुकना पैंदा है, जे अगर दरवेश बनना होवे तो कासा चुकना पैंदा है। लेकिन गुरु नानक जद आए ते गुरु बन के आए, जद आए चानन लेके आए, जद आए प्रकाश लेके आए, जद आए रहमत लेके आए, जद आए दया लेके आए, जद आए कृपा लेके आए, इन्नी सारियां दौलतां साडे लई लेके आए, कायनात दे इंसानां लई लेके आए, मनुखता लई लेके आए। एक जयकारा हो जाना चाहिए ना, तो मेरी सारी मेहनत ओ भरावो गल सुनो। साढ़े ना दावत कर दी मौलवी साहब दी, एक पठान ने देसी कुक्कड़ ज़िबा करके बनाया ही, देसी घ्यो च। तुसी ना बनायो, थोड़ी शराह अलाउ नहीं करती, साड़ी शराह अलाउ करती है। जिन्हों की शराह अलाउ कर दी है वो बनाते भी ने, खाते भी ने, तो उन्होंने मेहमान भी खाते हैं। गुरु सिख प्यारे मौलवी साहब आए, कुक्कड़ खादा खूब रीझां नाल, और घरवाली भी बैठी हुई है कि हुण मेरी तारीफ करनगे। पठान साहब भी बैठे हुए हैं, मौलवी साहब तारीफ करनगे, कोई दुआ करनगे। जिवें कि जब किसी पाठी नूं आपां सादे हैं तो माई बैठी हुंदी है, बाबा जी खीर नूं चंगा कहणगे, सब्जियां नूं चंगा कहणगे, प्रसादे नूं चंगा कहणगे, ऐदां भावना हुंदी है। जे अगर मेरे वर्गा चुप्पम गड़ुप्पम बाबा होवे तो फिर माई नूं चंगा नहीं लगना, बाबे नूं प्रसादा चंगा नहीं लग्या, मैं पसीने पसीने हो गए, फिर भी बाबे ने और इदा का ही मौलवी सी चुप्पम गड़ुप्पम। उन्हें कोई तारीफ नहीं की, कोई उस्तुत नहीं की, कोई वडियाई नहीं की। जब मौलवी साहब जान लगे, पठान साहब ने कुछ नजराना भी पेश किया, पैसे दिते, मौलवी साहब ने फिर ना कोई दुआ दी ना कुछ। तो आखिरकार वो कहन लग्या, मौलवी साहब मैं एक बेनती करदा। कहते हाँ करो। कहते जनाब बेचारा कुक्कड़ तो आपकी जानों चला गया, लगता है मुला जी नूं स्वाद नहीं आया। तो गल यही है कि मैं जोर मार मार के पसीने हो गया, मैनू लगता है संगत दे कुछ समझ ही नहीं आई। तो इस करके जयकारा छड़ दिया करो, मैं समझांगा तुहाडे भी कोई ना कोई गल समझ आ रही। तो गुरसिख प्यारे हो, उस तो बाद कहते भी चलो इदा करते हैं कि शास्त्री को हुण मुंडे नूं भेजते हैं। शास्त्री साहब को गए,
ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ